A very good evening to all of you. Good Is evening, it ma'am.
And welcome to today's training program. And a very good evening to all the participants also. So today we have with us Mrs. Rekha Pachori. She is a well-known face in our Sahodaya taking the trainings. Many trainings she has taken and all of them were so interesting. So let us today move to the training taken by Mrs. Rekha Pachori on the topic content and time management. Welcome to all. Over to you, ma'am. Thank you so much. So it's amazing to see 3,000 plus people already there. And I'm happy to be part of this session, hoping that my training will help all of you to make some kind of modification as teachers. I keep saying this. I was a principal earlier, and I, started doing these trainings because I felt the most important job that I have to do today is to make sure that teachers are empowered to take up their classes well. We all know children are so different in this generation. The 21st century kids have too many things that we need us to be prepared for. So today's topic is another very interesting topic and something which I feel all teachers should follow very, very strictly, right? So let me share my screen and we will start off. All right, so the topic is content and time management. Here we are going to talk about how preparedness is very important for us as teachers. So let us go ahead. So understanding content management first. So when we talk about content, what is it that it includes? We as teachers have to have a lot of things that we have to be prepared with before we enter the classroom, right? So content management occurs when teachers manage space. What is your space? As teachers, your classroom is your space. How do you manage your classroom? One, materials. What is it that you need to teach that particular day in that class, right? If it is mathematics and a topic that you are going to do specifically, are you prepared completely with your lesson plan, the time that is available in hand? So if it is a 40 minutes period, are you going to utilize 30 minutes to teach in the class? Am I audible? Because I can see some people saying that I'm not audible. Ma'am, you are audible. You may continue. All right, thank you. So as I said, when we talk about materials, it includes whatever plans that you're going to follow for that particular day, the time that you require to complete that particular part of the chapter that you're going to take up, right? Equipments, whether you're going to take up any test, whether you're going to take up any activity, whether you're going to show them some, video or some diagrams that you're going to draw, everything that is required as part of your teaching aids or equipments, right? The movement of people. Now, when we talk about people, who are the people in the classroom? Basically, students of the class. Other than that, make sure that once your class begins, you don't leave your class in between and you don't entertain anybody coming in between to disturb the class. Anything and everything can wait after you finish your class. You can give them the last 5 minutes if it is something important to be discussed, right? And lessons that are part of a curriculum or program of studies. As I said, when we talked about the material, are we very, very clearly adhering to the content that is given to us, the curriculum that we follow as it is given by the management to us, and the program of studies, whatever topic, how much to be taught for that particular class, the level that has to be followed. तो ये सारी चीजें हमको क्लासरूम मैनेजमेंट के अंडर कंटेंट की बात जब करते हैं तो इतनी सारी चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए. So there is a quotation here which says content is the reason search began in the first place. जब हमने पढ़ाना शुरू किया किसी टॉपिक को, उस टॉपिक के बारे में जानकारियां जब हमने इकट्ठा करना शुरू किया,
that is when the search began. That is when we decided that हाँ ये भी मैं क्लास में सिखा सकता हूँ, ये भी मैं बता सकता हूँ. The very important thing is, though we have a textbook, that we follow in the school, but it is important that other than the textbook, there is enough and more material that is available for you to take up your class more effectively. देखिए, टीचर हो आप तो आपको बच्चों से ज्यादा इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, राइट? इसके लिए आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च वर्क पहले ही करके रखना चाहिए. Planning for the topic that you're going to teach is very important, right? So how to manage your content? जब हम content की बात करते हैं तो उसको किस तरह से manage करना है, किस तरह से हम as a teacher can make it more interesting, more effective in the classroom. ठीक है? Make yourself a better teacher. मैंने 2 मिनट पहले कहा है कि रिसर्च वर्क पे बहुत इंपॉर्टेंस होना चाहिए. Why? Because when you're conducting a class, the topic that you take up, there can be so many latest information about it available. कई बार टेक्स्ट बुक में जो इंफॉर्मेशन होती है, if it is an older edition, तो शायद आपकी इंफॉर्मेशन अपडेटेड नहीं होती. तो इट इज इंपॉर्टेंट एज अ टीचर दैट आप जो भी टॉपिक पढ़ाओ उसको उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, उससे लिंक करता हुआ कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, तो वो हमें जरूर अपने पढ़ाई कराने के लिए बच्चों को इन्वॉल्व करना जरूरी है, राइट? एंड एज सच as a teacher, I always say, we must be, continuous learners. जब तक हम सीखते रहते हैं, तब तक हम आगे बढ़ते रहते हैं, right? So you will also grow and improve when you study the content in deep. जब आप in depth किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और आपके पास टाइम है क्लास में, तो आप उनको कई सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. कई बार मुझसे टीचर्स कहते हैं हमारे पास टाइम ही कहाँ होता है, इतना सारा इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा करके हमारे पास समय नहीं होता है. देखिए, ये जो समय ना होने वाली बात है, ये इससे मैं कभी सहमत नहीं होती हूँ, क्योंकि देखिए 40 मिनट का पीरियड है या 30 मिनट्स का पीरियड है, 5 मिनट आपको बिगिनिंग में और 5 मिनट एंड में रखना जरूरी है. 5 मिनट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लास एंड सेटलिंग टाइम जिसे बोलते हैं, और 5 मिनट एंड में टू सम अप व्हाट यू हैव टॉट. तो अगर 40 मिनट्स का पीरियड भी है तो आपके पास 30 मिनट पूरे हैं पढ़ाने के लिए, राइट? और जहां पर 30-35 मिनट्स का है, तो आपको अपनी क्लास को एक आदत में डालना जरूरी है कि दिस इज हाउ वी बिगिन एंड वी विल नॉट वेस्ट टाइम. आते ही बच्चों को पता होना चाहिए कि दिस इज द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू टीच. प्रीवियस डे को ही आपको बच्चों को बता के रखना चाहिए कि टुमारो वी विल बी डूइंग दिस एंड दिस, राइट? एंड टेल देम व्हाट ऑल शुड बी केप्ट रेडी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बूस्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट. देखिए, जब आप एज अ टीचर, आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है बच्चों को बताने के लिए, तो उनका भी इंक्विजिटिवनेस जो है वो बढ़ जाता है. बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्यूरियोसिटी बच्चों में बहुत होती है. और एक टीचर को ये जानना बहुत जरूरी है, हाउ टू टीच, व्हाट टू टीच एंड व्हाई टू टीच. हाउ टू टीच, मेरी टीचिंग स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए. व्हाट टू टीच, मेरा टॉपिक में मैं कितना पढ़ाऊंगा आज, ये मुझे पता होना चाहिए. एंड व्हाई टू टीच, मेरे बच्चों को किस लेवल तक की इंफॉर्मेशन मुझे पहुंचानी है, और मेरे इस टॉपिक को पढ़ाने से इनको क्या फायदा होगा. फायदा की बात ये नहीं कि एग्जाम में नंबर ज्यादा आ जाएंगे, इसका मतलब ये है कि आपने जो टॉपिक पढ़ाया है वो इनकी रेगुलर लाइफ में कहाँ इसको हम इंपॉर्टेंस दे सकते हैं. कुछ टीचर्स बोलते हैं अब हमारा तो सब्जेक्ट हिस्ट्री है, इससे बच्चा सीखेगा ही क्या, हिस्ट्री तो पुराने जमाने की बात है. देखिए, हिस्ट्री भी पुरानी चीजों को नई चीजों से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, राइट? जो पहले होता था, जो अब नहीं हो रहा है, या जो पहले होता था और अब हमने उसको बदल कर नया कुछ सिस्टम में अपने आप को ढाल लिया है, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अपने अपने सब्जेक्ट्स में आप किस हद तक उनको रेगुलर लाइफस्टाइल में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो टीचर मस्ट प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन सच अ वे दैट द स्टूडेंट शुड फील दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लर्न्ड. हम अगर अपने सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देंगे तो बच्चे भी उस सब्जेक्ट को लाइक करेंगे. और एक बात मान के चलिए
कि बच्चे सभी के सभी टीचर सेंट्रिक होते हैं। टीचर सेंट्रिक का मतलब है अगर उनको टीचर अच्छा लगा तो सब्जेक्ट उनको 100% अच्छा लगेगा। टीचर पसंद नहीं है तो सब्जेक्ट भी पसंद नहीं है। ये बहुत क्लियर फंडा है उन लोगों के साथ। एंड इफ दे डोंट लाइक द टीचर, दे डोंट वांट टू लर्न दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट से बच्चों को एवर्जन होता है ना, तो इसलिए होता है कि हम उनको सही तरीके से उस सब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स नहीं अच्छी लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैथ्स टीचर्स अच्छे नहीं होते। मैथ्स टीचर्स को अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग वे में और सिंपलर वे में सिखाना आना चाहिए, जिससे कि वो लोग इंटरेस्टेड हो सके। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एक अच्छे टीचर के मिलने के बाद वो अपने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दिखाने लगते हैं। सो बच्चों की परफॉर्मेंस और अचीवमेंट्स को अगर आपको बूस्ट करना है तो एज अ टीचर यू हैव टू हैव वेरी वेरी गुड कमांड ओवर योर सब्जेक्ट, राइट। तो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज है या टैक्टिक्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट है। जब हम जो सिखाते हैं उसमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करते हैं और क्लासरूम को किस तरह मैनेज करते हैं, ये दोनों एक इफेक्टिव टीचिंग पे बहुत बहुत असर करता है। अगर आप एक इनडिसिप्लिन्ड क्लास को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो आपकी क्लास में सीख नहीं पाएंगे बच्चे, क्योंकि आधा टाइम आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और आपके बच्चे डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो एक बोलते हैं ना, क्लासरूम में एक रूल्स सेट करना बहुत जरूरी है कि दीज आर द क्लास रूल्स वी विल ऑलवेज फॉलो। आप चार्ट बना के लटका दीजिए या रिमाइंडर के तौर पे आप 1 2 3 करके उनको बता सकते हैं कि 1 मीन्स it is time to take out the book and keep it on the table. 2 means it is time to stop making noise and paying attention. 3 means we are beginning. That is it. Beyond that 3, there should not be anything that can work, right? So this is something that you have to work on. और दूसरी बात ये भी है कि टीचिंग करते वक्त अगर आप प्रिपेयर्डनेस के साथ जाते हैं कि हमने सारी चीजें प्रिपेयर कर ली, तो आप अपना टाइम को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर एक और है कि जैसे एक्टिविटीज प्लान करके जाते हो, कई बार होता भी है कि हमने बहुत सारी प्लानिंग करी पर वो उस दिन nothing worked out because the class was so distracted they refused to learn. So हमारे पास एक प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए। प्लान ए वो जो एक्चुअल प्लान है फॉर द डे टू टीच। प्लान बी वो अगर कुछ वर्कआउट नहीं हुआ, मैंने एक स्ट्रैटेजी यूज करी है बच्चों को सिखाने के लिए पर बच्चे ब्लैंक लग रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे पास एक प्लान बी होना चाहिए उनको किस तरह से उसी टॉपिक को अच्छी तरह से सिखा दें। और प्लान सी वो कि जब लगता है कि आज बच्चे बिल्कुल भी पढ़ने के मूड में नहीं है एंड दे आर नॉट गोइंग टू हैव दिस हेवी टॉपिक बीइंग डन इन द क्लास, तो टीचर को समथिंग लाइटर करने का अपने पास जुगाड़ होना चाहिए। टीचर मस्ट हैव समथिंग दैट he or she should do on that particular day without wasting time, right? So these are things that you have to remember. Make the day go by faster. जैसे मैंने ये बताया कि टीचर्स के पास अगर आप 30-40 मिनट्स की बात करते हैं तो उतना तो आप इंफॉर्मेशन अपने पास उस दिन को पढ़ाने के लिए होना चाहिए। उसके अलावा एक 10-15 मिनट्स का एक्स्ट्रा प्लानिंग रखनी चाहिए। Why 10-15 मिनट्स एक्स्ट्रा? बिकॉज कई बार बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं और आपने जो 30 मिनट्स का प्लान किया है शायद वो आपका 20 मिनट्स में खत्म भी हो जाए, राइट? सो इन दैट केस व्हाट विल यू डू? सो टीचर्स मस्ट हैव अ लिटिल मोर planned for the day. Sometimes इसका opposite भी हो सकता है कि जो कॉन्सेप्ट हम सिखाने जा रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट था तो क्लास कर नहीं पाई, तो in that case how will I manage that particular part, right? So teachers should always plan enough so that students remain engaged. जितना टाइम आप उस क्लास में स्पेंड करते हैं उसमें टाइम की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, उतनी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। चाहे आप 20 मिनट पढ़ाएं पर एक्स्ट्रा 10 मिनट्स में आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे बच्चे कुछ ना कुछ सीखें। एनीथिंग, इट कैन बी मॉरल एजुकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर डे, कि आपको लगता है कि कुछ इधर इस क्लास में थोड़ा सा हमें थोड़ा काउंसलिंग की जरूरत है, तो मैंने 5 मिनट अपना काउंसलिंग के लिए भी निकाल लिया, राइट? सो समथिंग लाइक दैट कैन ऑल्सो बी प्लान्ड। मिनिमाइज क्लासरूम डिसिप्लिन इश्यूज। देखिए बच्चे इनडिसिप्लिन तब होते हैं जब वो या तो काफी बोरियत के साथ बैठे होते हैं क्लास में या टीचर्स उनको एंगेज नहीं कर पाते हैं
प्रॉपरली। कई बार ये होता है कि टीचर प्रयास कर रहा होता है कि मुझे ये सिखाना है, पर बच्चे शोर मचा रहे हैं, टीचर भी साथ में इरिटेट हो रहा है, टीचर भी चिल्ला रहा है, 4 बच्चों को वहां पे हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया, 2 बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दिया और कुछ बच्चों को इधर से उठा के पीछे बिठा दिया, मतलब एवरीथिंग इज हैपनिंग, बट द टीचर इज नॉट मेकिंग श्योर दैट everybody is involved for something interesting. तो क्लासरूम में अगर आपको डिसिप्लिन इश्यूज को थोड़ा सा हैंडल करना है तो बीच बीच में कुछ एक्टिविटीज डालना बहुत जरूरी है, ग्रुप एक्टिविटीज, पेयर एक्टिविटीज, राइट? और यू कैन हैव, ओके लेट अस प्ले अ गेम, थोड़ा सा 1 मिनट गेम उनको थोड़ा सा एक्साइट करने के लिए। हो सकता है कि प्रीवियस 2 पीरियड्स मैथ्स के थे और अब आपका इंग्लिश का पीरियड है, या प्रीवियस 2 पीरियड्स फिजिक्स के थे और अब आपका साइंस का पीरियड है या सोशल स्टडीज का पीरियड है, और आपको लग रहा है कि बच्चे थोड़े से डिसइंटरेस्टेड से लग रहे हैं, तो क्विकली उनके साथ बोला अच्छा लेट अस प्ले अ गेम, और उनको थोड़ा सा एक्साइट करने को बोला कि ओके आई विल गिव यू सम इंस्ट्रक्शंस एंड यू हैव टू फॉलो इट। वो जो साइमन सेज वाला गेम है वो आप खेल सकते हो उनके साथ कि चलो साइमन सेज लिफ्ट योर हैंड, साइमन सेज क्लैप क्लैप क्लैप, साइमन सेज गो डू दिस, मतलब आप कुछ भी 1 मिनट के लिए, या फिर आप उनको बोल सकते हो कि चलो लेट अस डू लाफिंग एक्सरसाइज टुडे एंड देन यू लाफ हार्टली विद देम, और टेल देम समथिंग इंटरेस्टिंग which is a very small thing. कोई टंग ट्विस्टर को प्रैक्टिस करने को बोल दिया आपने कि चलो लेट अस डू द टंग ट्विस्टर, और बहुत ज्यादा परेशान कर रहे तो बोले ओके फाइन क्लोज योर आईज एंड आई विल टेल यू टू काउंट बैकवर्ड्स। तो आप उनको बोलेंगे चलो 500 से बैकवर्ड काउंटिंग शुरू करो, तो 500, 499 करते करते जैसे वो 450 और 425 तक आते हैं ना, तब तक वो मतलब they are ready to open their eyes and be part of you. So something like that can be done in the class when there is disciplinary issues that you see, right? Make you confident in what you do. As a teacher, always make sure that you are confident in whatever you're going to do in the class. जो भी प्लानिंग आपने करी है उसको आप एग्जीक्यूट बहुत इफेक्टिवली करें, और कई बार थोड़ा सा डिफरेंट होना बहुत जरूरी है। टेक्स्ट बुक को लेकर अगर आप क्लास में सिर्फ लेक्चर मोड में पढ़ाएंगे या बोर्ड की तरफ घूम के आप लिखते जा रहे हैं, बच्चों से बोला चल राइट कॉपी फ्रॉम द बोर्ड, दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड। अगर आप चाहते हैं कि आज के बच्चों को एक्साइटेड रखें तो कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, एक्टिविटी बेस्ड करना पड़ेगा। किसी क्वेश्चन को आप मतलब क्लास में फ्लोट करें एंड देन आस्क देम टू डिस्कस दैट इन ग्रुप्स। दिस इज वेयर दे स्टार्ट थिंकिंग, राइट? सो यू हैव टू, जैसे स्टोरी टेलिंग मेथड से पढ़ा दिया या आपने रोल प्ले कराना शुरू कर दिया। रोल प्ले भी हर सब्जेक्ट में हो सकता है। देखिए मैं ये इस बात को कहती हूँ, जैसे पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर भी अगर बोलेंगे या पार्ट्स ऑफ अ प्लांट भी अगर हम बोलेंगे तो उस पर भी रोल प्ले हो सकता है कि ओके यू आर द स्टेम, यू विल टॉक अबाउट what are your roles in a plant system, right? You are a flower, you are a fruit, you are a leaf. आपने उसमें भी रोल प्ले कर दिया तो क्या हुआ, बच्चों को इतना एक्साइटमेंट होता है when you do all these things, instead of drawing that old picture on the board and this is the leaf and this is the flower, करने की जगह आप उसको मॉडिफाई करके अलग अलग तरह से अगर प्रेजेंट करते हैं बच्चे एंजॉय करते हैं। एंड वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज अ टीचर who works hard and invests extra time for her own classroom is always noticed and respected. ऐसे टीचर्स को बच्चे बेहद पसंद करते हैं, right? For being a successful teacher, what are the rules that have to be followed? Never stop learning. पढ़ना कभी छोड़िए नहीं, पढ़ते जाइए, इंफॉर्मेशन को बढ़ाइए, अपने आप को अपग्रेड करते जाइए। एक्ट इन योर स्टूडेंट्स बेस्ट इंटरेस्ट। कोई भी चीज बच्चों के साथ करना चाहते हो तो सिर्फ इसलिए करिए कि बच्चे उसमें कुछ ना कुछ दे विल गेन आउट ऑफ इट, राइट? दे विल बी थिंकिंग मोर ऑन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? ऑलवेज बी विलिंग टू लिसन। बच्चों को सुनना बहुत जरूरी है। देखिए हम लोग उनको चुप कर देते, you're always talking, you always have a question to ask. No, I don't want to listen to anybody, you have to listen to me. This is a wrong thing. कोई बच्चे अगर आपसे सवाल करते हैं, अब देखिए सेंसिबल सवाल है तो जवाब तुरंत दे दीजिए। आपको लगता है कि एक बच्चा जबरदस्ती बार बार सवाल कर रहा है तो उसको डिसहार्टन ना करिए, उसको बोलिए ओके Mohan, I'm hearing you, but can we have this discussion at the end of the class, or maybe I'll call you later and I'll listen to everything that you want to tell me.
तो बच्चे को ये लगता है ओके द टीचर विल हियर मी आउट, सो लेट मी सिट डाउन क्वाइटली. सो दिस इज ऑल्सो important. Come to the class prepared. A teacher cannot enter the class without preparation. That is because you exactly know how much time you have in hand, how much time to spend, what to teach, or how to teach, because you've already prepared what is to be taught in the classroom, right? Then provide clear rules and expectations. हमेशा अपने बच्चों को क्या होना है क्लास में बता के रखना चाहिए. देखिए क्या होता है ना, जो टॉपिक आपको पढ़ाना है, मैंने जैसे बोला पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, आपने बोर्ड पे लिख दिया पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, आपने साइड में उसके आज क्लास में होने वाले सब टॉपिक्स को भी उधर लिख दिया, राइट? वी आर गोइंग टू डू पार्ट्स ऑफ प्लांट, उसमें लिख दिया फीचर्स ऑफ फ्लावर्स और फीचर्स ऑफ लीव्स और ट्रीज, जो भी है एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू टीच, उसके सब टॉपिक्स को अपने बोर्ड पे लिख दिया. एंड में आपने ये भी लिख दिया कि क्विज एंड ऑफ द सेशन में. तो बच्चे ना वो बार बार चेक करते रहते, ओके टीचर ने अब ये पढ़ा दिया, नेक्स्ट ये पढ़ाएगा, इसके बाद ये होगा, और एंड में क्विज भी है. दैट मस्ट बी रियली इंटरेस्टिंग समथिंग, सो दिस इज समथिंग दैट अ टीचर मस्ट ऑलवेज डू. क्लास रूल्स भी जैसे बोर्ड एक चार्ट में पहले फर्स्ट टाइम व्हेन यू मीट योर चिल्ड्रन, क्लास रूल्स उनको एक्सप्लेन करना है कि द मोमेंट आई एंटर द क्लास वी विल राइज एंड वी विल विश ईच अदर. दैट इज द फर्स्ट रूल कि आपने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो भी बोलना है, नमस्ते जो बोलना है वो हमने कर लिया. एंड देन वी विल सिट डाउन विदाउट मेकिंग साउंड ऑफ द फर्नीचर. चेयर खींच रहे हैं, रख रहे हैं, उसकी आवाज नहीं होनी चाहिए. सो दिस इज द सेकेंड रूल. थर्ड रूल इज यू विल क्विकली टेक आउट द बुक विच आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यस्टरडे. कल मैंने आपको बता दिया था कि आप फिजिक्स की बुक में चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे, तो यू हैव ऑलरेडी टेकन दैट आउट, राइट? एंड देन इफ यू सी देयर इज अ लिटिल मूवमेंट, देन यू से ओके 1, नाउ इट इज सेटलिंग टाइम, 1, 2 and 3. In by 3 everything is settled and you're ready to begin your class. तो ये रूल्स जब आप अपने बच्चों के साथ करते हो ना, तो तब वो अपने आप सेटल होने लगते हैं. एंड दे नो दैट दिस टीचर has this particular way of teaching, right? Strategies for efficient content planning. How can you be effective in planning your content? So during the first few years, जब आप B.Ed कर रहे थे या आप एक न्यू टीचर हैं, आपको याद है जब B.Ed कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया. हम लोग चार्ट बनाते थे, लेसन प्लान बनाते थे, लेसन ऑब्जर्वेशंस होते थे हमारी, फिर हमें बताया जाता था कि ये इस तरह नहीं बनाना है, इस तरह करना है, टाइम को ध्यान रखना है, so many things, right? फिर क्या हुआ? Everything was taught, yes. फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे इनिशियल टाइम में तो हम अपने लेसन प्लान को भी मतलब जैसे सिखाया जाता था हम वैसे करने लगे, पर बाद में क्या हुआ, ओवर द इयर्स हम लोग भी कंफर्टेबल हो गए हमारे टीचिंग स्टाइल में, तो हमें वो उतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता था प्रिपेयर करने के लिए या प्लान करने के लिए, राइट? तो ओवर द years we learned that this works, this doesn't work in my class, so I can do these things. तो ये एक चीज है कि हमें अपने टाइम को और स्टाइल को कैसे इम्प्रोवाइज करना, ये ध्यान रखना है. सेकेंड पॉइंट इज ऑलवेज यूज अ बाइंडर, फोल्डर जिसे बोलते हैं ना, वो आपके पास हमेशा होनी चाहिए, जिसमें आपके लेसन प्लान, एक्टिविटीज, टेस्ट, क्विजेस, वर्कशीट्स जो भी आप बनाते हैं वो सब एक साथ रखी हो. ये इसलिए कि जब आप क्लास में जाते तो आपको ढूंढना नहीं पड़े कि ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा, अरे वो तो मैं स्टाफ रूम में भूल आई, अरे वो तो मेरे घर रह गया. ये नहीं होना चाहिए. एवरी टाइम यू गो टू अ क्लास, जैसे मैं बोलती हूँ एंड ऑफ द डे पे हमें अपना नेक्स्ट डे का प्लानिंग पूरा हो जाना चाहिए. व्हाट इज इट आई एम गोइंग टू टीच इन 6th A, उसके बाद मुझे जाना है 7th B में, उसके बाद मुझे जाना है 8th स्टैंडर्ड में, उसके बाद मुझे वापस 6th में आना है. तो पीरियड वाइज मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, और मेरे उस दिन से रिलेटेड काम की सारी चीजें मेरे फोल्डर के अंदर रेडी होनी चाहिए, राइट? अब दूसरी बात है, यू नीड नॉट हैव द ओरिजिनल आइडियाज एवरी टाइम. देखिए एक एफिशिएंट टीचर होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको कुछ नया सोचना है. किसी आपके पैरेलल टीचर ने किसी बहुत अच्छी एक्टिविटी करी है तो यू कैन ऑल्सो यूज द सेम एक्टिविटी इन योर क्लास. अगर आज मैंने आपको कोई बातें बताई है, अगर आपको लगता है कि आई वांट टू यूज दिस इन द क्लास, यू कैन वेरी वेल यूज इट. आप YouTube खोलिए, गूगल खोलिए, आपको इतनी सारी एक्टिविटीज बच्चों के साथ करने के लिए मिल जाएगी कि आप यू विल बी अमेज्ड योरसेल्फ. तो
कोई जरूरी नहीं है कि हर बार हमें एक अलग सोच अपने अंदर से पैदा करनी है, कोई जरूरी नहीं है। जो चीज अच्छी लगे, जो चीज आपको लगता है मेरे क्लास में वर्क करेगी, वो सब चीजें आप अपनी क्लास में कर सकते हो, राइट? और वर्किंग इन अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट that is free from other students, teachers or family members will help you to accomplish a lot more. आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, अरे वो करता है, मुझे तो करना ही नहीं आता, मुझे तो आई डोंट लाइक टू डू दिस, डोंट गेट डोंट बी रिजिड। रिजिडिटी से बाहर रहिए, एकदम फ्री होके अपने बच्चों को बच्चों का लर्निंग स्टाइल को ध्यान में रखते हुए अपनी एक्टिविटीज को प्लान करिए। देखिए हर क्लास में तरह तरह के बच्चे होते हैं, उनकी लर्निंग स्टाइल्स अलग होती है। आपकी टीचिंग में सब स्टाइल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, थोड़ा सा पिक्टोरियल होना चाहिए, थोड़ी आपने स्टोरी एलिमेंट डाल दी उसमें, थोड़ा आपने कुछ सवाल जवाब किए जिससे कि क्वेश्चनिंग के कारण दे स्टार्ट थिंकिंग, थोड़ी एक्टिविटी कर ली, थोड़ा गेम खेल लिया, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, राइट? अब और भी चीजें हैं कि जैसे आप अपने लेसन्स को ऑब्जर्व करवाते हैं, जैसे आपके अथॉरिटीज हैं स्कूल में, अगर क्लास ऑब्जर्वेशंस के लिए आते हैं तो आपको फीडबैक के टाइम इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। कोशिश करिए कि पॉजिटिव फीडबैक को समझ के अपने आप को इम्प्रूव करने की। कई बार ये भी होता है कि आप बच्चों से भी अपना फीडबैक ले सकते हैं, सेइंग दैट ओके टेल मी 2 things that you liked the most that happened in the class today, और 2 things you did not like at all। तो बच्चे भी आपको फीडबैक दे सकते हैं जिससे कि आप अपने टीचिंग मेथड्स को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। देखिए दिस कैन हैपन ओनली व्हेन यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ योर स्टूडेंट्स। बच्चे और टीचर्स जब आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से इंटरैक्ट करते हैं, they are comfortable with each other, that is the time that they will give you this kind of feedback without hesitation, right? और कोई भी एक्टिविटी, जैसे मैंने बताया, क्विज कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं, वर्कशीट कर रहे हैं, हमेशा मेक श्योर दैट आप उसको एक बार खुद सॉल्व करके और पढ़ के जरूर देखें। कई बार ऐसे होता है कि हम बिना पढ़े और बिना किए चले जाते हैं, उसमें गलतियां होती है, फिर बच्चे वो हंसी उड़ाते हैं या फिर यू गेट एम्बैरेस्ड और यू गेट कंफ्यूज्ड। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कोई भी चीज क्लास में करने जा रहे हैं उससे पहले एक बार अगर आप पढ़ के चले जाओगे तो आप वो एकदम फूल प्रूफ बना सकते हो। तो प्रैक्टिसिंग द एक्टिविटी बिफोर कंडक्टिंग इट इज अ वेरी वेरी गुड आइडिया। और प्लानिंग इज वेरी वेरी क्रूशियल। अगर आप ये सोचे कि ठीक है क्लास में जाके देख लूंगा मुझे क्या पढ़ाना है आज, तो वो जो लास्ट मिनट में आप जो करते हैं ना क्लास में, उसका उतना इफेक्ट नहीं रहता, इफेक्ट भी नहीं रहता। एंड देन यू आर जस्ट डूइंग इट एज बोलते ना जिम्मेदारी है, मेरे को पढ़ानी है इसलिए मैं जाके पढ़ा रहा हूँ, उसमें आपने वो एक्साइटमेंट नहीं डाला तो बच्चे शायद उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। सो व्हाट इज कंटेंट मैनेजमेंट? This is content management for sure if before the class you identify the learning objectives। ये मैंने बताया था ना, why am I teaching, what am I teaching and how am I teaching। अगर हमें ये learning objectives पहले से पता होने चाहिए अगर आपको content management में समझदारी चाहिए तो, right? Plan the specific learning activities, assessments, and the sequence of the lesson. ये सब before the class. Create a realistic timeline. 30 minutes है तो 30 minutes की पढ़ाई। आप 30 minutes में 2 घंटे की पढ़ाई नहीं squeeze in कर सकते हैं, और 30 minutes में आप 10 मिनट की टीचिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो आप एक realistic timeline लेके चलिए। This is important. Plan for a lesson closure। जब चैप्टर लेसन खत्म होता है उस दिन का एंड में आप कुछ एक्साइटिंग बच्चों के साथ करिए। इट कैन बी डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स और बोलोगे ओके टीम ए बी सी डी, नाउ वी विल हैव अ क्विज, आई विल आस्क यू 10 क्वेश्चंस, लेट अस सी व्हिच टीम विंस एंड द टीम व्हिच विंस विल टेल अस टुमारो व्हाट इज द टॉपिक दैट वी वांट टू डू। तो कुछ ऐसा एक्साइटिंग कर दोगे बच्चों के साथ तो वो बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे। या फिर आपने उनको एक बोर्ड के ऊपर डायग्राम बना के उसको लेबल करने को बोल दिया, या यू आस्क अ क्वेश्चन एंड टेल देम टू राइट द कीवर्ड्स ऑन द बोर्ड
So anything, some there team wise वो भी आप लोग कर सकते हो. During the class, share the lesson plan with your students. Helps keep them more engaged and on track. Lesson plan here, I don't mean the physical lesson plan. जैसे मैंने बताया कि आप क्या करोगे अगर आपने टॉपिक और सब टॉपिक्स बोर्ड पे लिख दिया तो बच्चों को पता रहता है कि आज इतना कवर होने वाला है, राइट? और आफ्टर द क्लास रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वर्कड वेल एंड व्हाई एंड व्हाट यू कुड हैव डन डिफरेंटली. कई बार अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना तो बहुत जरूरी है, वेयरइन यू नो दैट आज मैंने ये पढ़ाया है और इसमें बच्चों ने ये बहुत इंटरेस्टिंग वे में लर्न किया है and this did not work. So you have to plan what did not work should not be repeated or should be improvised, and what worked can be repeated again, right? So this is how you will go about it. So managing content involves the following steps. जो हमने अभी content management के बारे में बताया उसमें क्या क्या है. Content goals, तो हमने जैसे बताया ऑब्जेक्टिव्स, व्हाई एम आई टीचिंग, व्हाट एम आई टीचिंग, हाउ एम आई टीचिंग, ये हमें पता होना चाहिए. सोर्सेस, वेयर एम आई टेकिंग दिस इंफॉर्मेशन फॉर टुमारोज क्लास. मैंने टेक्स्ट बुक से लिया है या कोई रेफरेंस बुक से लिया है या इंटरनेट से कलेक्ट किया है, तो ये हमारा सोर्स मुझे पता होना चाहिए. स्ट्रक्चर, एम आई फॉलोइंग द करिकुलम दैट इज डिजाइंड. मेरे स्कूल में से जो मुझे करिकुलम दिया है, व्हाट आर द सब टॉपिक्स एंड हाउ टू गो अबाउट इट, एम आई डूइंग इट. क्वांटिटी एंड डेप्थ, मैं किस क्लास को पढ़ा रहा हूँ, 9th स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा हूँ तो 9th स्टैंडर्ड की लेवल की इंफॉर्मेशन मुझे बच्चों को देनी है. उससे एकदम मतलब फर्स्ट सेकंड के बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं वो आप 9th में जाके नहीं पढ़ा सकते. और दूसरा, मुझे कितना इंफॉर्मेशन देना है. देखिए एज अ टीचर आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे इस क्लास में कितना सिखाना है. Is this class ready to take the information that I want to give? Because sometimes they are immature, so they don't understand. Sometimes, the class is a little more higher level के बच्चे होते हैं, तो वो आपको extra information भी वो सीखने को तैयार होते हैं. And your content should always have different types of activities to be, dealt with. कुछ ना कुछ exciting work class में जरूर होना चाहिए. चलो एक एक्टिविटी करते हैं फटाफट. आई विल जस्ट गिव यू 1 minute फॉर दिस. इन 1 minute लिस्ट डाउन द थिंग्स यू विल कैरी विथ यू ऑन अ ट्रिप टू अ डेजर्ट. पुट डाउन योर रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स. आप चैट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या क्या चीजें आप एक डेजर्ट ट्रिप पे लेके जाएंगे. एक एक करके नहीं लिखेंगे, सारी चीजें जो दिमाग में आ रही है वो एक ही चैट में आपको लिखना है. टेल मी व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल टेक विथ यू when you go on a trip to a desert. डेजर्ट में जब जाते हैं, डेजर्ट पता है ना क्या होता है, जब डेजर्ट पे जाते हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हम साथ में लेके जाते हैं वो आपको चैट बॉक्स में लिखा. तो सरिता सेज वाटर एंड फूड. डू यू थिंक दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैरी? आपको सारी चीजें सोचना है. यस, बैग, वाटर, फूड, वाटर बॉटल. देखिए वाटर बॉटल, अम्ब्रेला, कैप, कई लोगों ने तो कई सारी चीजें लिखी है. देखिए सब चीजों का लिस्ट होना चाहिए. यस, आई कैन सी सम ऑफ देम हैव रिटन अ लिस्ट ऑफ थिंग्स. कॉटन क्लोथ्स, सो गुड. अम्ब्रेला, वाटर, फूड, कैप, सनग्लासेस, सनस्क्रीन, कॉपी. ऑल राइट, वेरी वेरी गुड. Fruits, somebody has written fruits, bed sheet, boots, नैपकिन, सनस्क्रीन, कैमरा. ओके, मोबाइल भी नहीं बोला किसी ने. ओके, मोबाइल फोन भी आ गया है. राइट, वेरी वेरी गुड. जूस. ओके, सो देखिए अभी आपने एक्टिविटी करी है जिसमें कोई एफर्ट नहीं था. राइट, आई जस्ट केम अप विद समथिंग रैंडम और अब आपने अपने आप को सोचने पे मजबूर कर दिया. एंड पीपल आर कमिंग विद सी लाइक बैटरी, कहाँ चार्ज करेंगे बताइए. सोलर बैटरी किसी ने लिखा है, सोलर बैटरी लेके जा सकते हैं. करेक्ट. किसी ने लिखा है कि इमरजेंसी मेडिसिन लेके जा सकते हैं. किसी ने लिखा है पावर बैंक. ओके, मैप समवन हैज रिटन. राइट, पगड़ी लिखा है किसी ने, चॉकलेट लिखा है, फर्स्ट एड बॉक्स लिखा है. देखिए, सो व्हाट हैपेंस इज when you make your children think, they will think of lot of things.
किसी ने लिखा कॉम्पस, वेरी वेरी गुड, कॉम्पस भी लेके जा सकते हैं. All right, water bottle, fine. So that 1 minute is over. So let us get back to what I was trying to say through this activity. कि देखिए एक्टिविटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बहुत कुछ चीजें क्लासरूम में लेके जाने की जरूरत है, कुछ नहीं. मैंने आपको एक सिंपल सा एक पिक्चर दिया और एक क्वेश्चन पूछा, और आपने जब ऐसी एक्टिविटी क्लास में करनी है तो बच्चे अपना हाथ उठाएं एंड यू स्टार्ट पुटिंग इट डाउन ऑन द बोर्ड. ठीक है, और ये कर सकते हैं कि बोर्ड को आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ABCD. जिस रो से जो रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं वो लिखते जाइए. इसमें भी आप कर सकते हो कि आप 4 बच्चों को बाहर बुला ले और आप पूछते जाएं और वो लिखते जाएं. एंड ऑफ द डे पे क्या होगा, एंड ऑफ द एक्टिविटी पे क्या है कि बच्चों को ये पता चल जाता है कि ओके, टीम A न्यू द मोस्ट ऑफ द थिंग्स, राइट? Team B, or you put them 10 in a group together, they sit together, you give them 1 minute and they have to put down all the names and then utter it out in the classroom. बोलना है और आपको पता चलता है कि किस टीम ने सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सेस दिए. सिंपल एक्टिविटी, कुछ नहीं लगता है, इसमें कोई समय बर्बादी नहीं है, इसमें कोई एक्स्ट्रा प्लानिंग की जरूरत नहीं है. माय डियर टीचर्स, छोटी छोटी चीजों से आप अपने क्लास को एक्साइटिंग बना सकते हैं. कंटेंट का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ टॉपिक और चैप्टर और सब्जेक्ट से डील करना है. कई बार हम कुछ ऐसी चीजें भी कर सकते हैं जो थोड़ा सा हटके हो और जो बच्चों को एक्साइट कर सके. राइट नाउ आई एम कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक विच इज टाइम मैनेजमेंट. ऑल राइट, सो टाइम मैनेजमेंट का क्या मतलब है? इट इज मैनेजिंग आवरसेल्व्स इन रिलेशन टू टाइम. 1 घंटा मेरे हाथ में है और मैं 1 घंटे में अपने आप को किस तरह मैनेज करती हूँ. आज मैं ये सेशन ले रही हूँ, 1 घंटे में मुझे कितना कवर करना है, आई मस्ट नो, राइट? आई मस्ट नो हाउ मच एम आई गोइंग टू teach or speak about in that 1 hour. Same goes with you as teachers. You need to know how much time you need to spend for that particular day. In that 30 minutes, what is it that you will teach? And 30 minutes a day means how many hours in a week and how many hours are required to complete 1 chapter. So this is managing your time, right? It is setting priorities and taking charge of your situation and time utilization. मैं अपनी प्रायोरिटी पे किस काम को पहले जगह देता हूँ, राइट? और अपने टाइम यूटिलाइजेशन को कैसे परफेक्ट करता हूँ. दिस इज व्हाट टाइम मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट, राइट? टाइम मस्ट बी एक्सप्लिसिटली मैनेज्ड जस्ट लाइक मनी. 100 रुपए मैं आपके हाथ में दूं और मैं उसको बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करने को बोलूं, तो आप क्या करोगे? दिस इज व्हाट अ क्वेश्चन कैन बी गिवन एंड you can actually try it out. You give a group of children 100 rupees to spend, not actually in the market. आप एक क्लासरूम मार्केट बना सकते हो और उसमें मैक्सिमम चीजें आप उस 100 रुपए में क्या कर सकते हो ये सिखाने की कोशिश कर सकते हो. दिस इज, जितना मनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है लाइफ में, उतना ही टाइम भी है, ये हमको भूलना नहीं चाहिए, राइट? सो पर्पस ऑफ टाइम और सेल्फ मैनेजमेंट क्या है? देखिए, स्ट्रेस जो है हमारा, टाइम मैनेजमेंट से स्ट्रेस बहुत बहुत रिलीफ होता है. क्योंकि क्या होता है, समय की कमी के कारण हम लोग बहुत परेशान रहते हैं. सुबह टाइम से नहीं उठते, काम नहीं घर के खत्म होते, काम घर के नहीं खत्म होते, भागते दौड़ते स्कूल पहुंचते हैं, स्कूल के काम नहीं होते, वापस घर में आते तो जो बचे हुए काम थे वो भी आपके ऊपर बर्डन है, जो स्कूल में कंप्लीट नहीं हो वो अगले दिन के लिए बर्डन है. सो दिस स्ट्रेस ऑफ नॉट मैनेजिंग योर टाइम will always make you hassled, right? और अगर आप बैलेंस करते हो टाइम को, तो क्या होता है, आपका वर्क, आपका होम, फैमिली एंड योर ओन सेल्फ आर मैनेज्ड वेल, राइट? समय से उठना है. मैं रोज 5 बजे का अलार्म लगा के उठता हूं और मैं ये काम सीक्वेंस पे करता हूं. देखिए, कई बार होता है कि मैं कोई रोबोट थोड़ी हूं कि मैं इसी तरह काम करूं. अगर आप अपने टाइम को मैनेज करके चलते हैं ना, तो शाम में आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होने की संभावना भी होती है, राइट? और अगर टाइम को मैनेज करते हैं तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि मैं इतने टाइम में क्या काम करूंगा. 30 मिनट्स की क्लास में मुझे ये पढ़ाना है, मुझे पता है, और मैं 30 मिनट्स में वो पढ़ा के क्लास से बाहर आता हूँ
तो मैं कितना सेटिस्फाइड हूँ, राइट, बिकॉज आई कंप्लीटेड व्हाट आई वांटेड टू डू टुडे इन माय क्लास, राइट। गोल्स सेट करना बहुत जरूरी है कि ये वीक में मुझे इस क्लास में इतना कुछ पढ़ा के खत्म करना है, एंड विथ दिस माय चिल्ड्रन शुड बी able to answer these kind of questions. My children should be able to, follow anything related to this topic. अगर आप गोल सेट कर लेते हो तो आपका टाइम मैनेजमेंट अपने आप होने लगता है. So what is the need to manage time? क्यों चाहिए होता है ये टाइम मैनेजमेंट? So time management is needed by everyone and is important for various reasons, such as it helps to optimize your use of time to achieve the personal and professional goals. देखिए अपनी लाइफ में एक पर्सनल पार्ट भी है, प्रोफेशनल भी है. घर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा स्कूल है, राइट. तो घर के कामों को भी इफेक्टिवली कर पाना और स्कूल के कामों को भी इफेक्टिवली कर पाने के लिए बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत है और समय मैनेज करने की जरूरत है, राइट. इट हेल्प्स यू टू परफॉर्म टास्क्स विद अ प्लान्ड एंड थॉटफुल एक्शन. क्योंकि मैंने प्लानिंग करी है तो मेरा काम जितने समय पे मैंने सोचा है उसमें होने की संभावना है. इट विल बी वेरी रेयर टाइम्स दैट यू वुड एक्सीड योर टाइम. कई बार एक्सीड हो जाता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, चाहते हो कि थोड़ा सा और मैं कर दूं, कई बार होता है, एंड दैट इज नॉट रॉन्ग, बट यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग. अगर आपने थोड़ा टाइम एक्सीड भी किया है और वो किसी फ्रूटफुल वर्क के लिए है तो it is acceptable. But if you are wasting your time and exceeding it, it is actually waste of time, right? It helps you to work smart and not work hard. Slog करना बोलते हैं ना, I slog the day in, I slog the whole day. People tell me पूरे दिन slog करता हूँ, थक जाता हूँ मैं. आप स्लॉग करते हो क्योंकि आपने अपने दिन को प्लान नहीं किया है. आगे की स्लाइड्स में मैं बताऊंगी कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं एज टीचर्स और एज ह्यूमन बीइंग्स, जिससे कि आपकी लाइफ सिंपलर हो. इट हेल्प्स इन डिटरमिनिंग प्रायोरिटीज. क्या सबसे इंपॉर्टेंट है उसको पहले करिए, लेस इंपॉर्टेंट उसके बाद, और जो अनइम्पॉर्टेंट है उसको आप सबसे नीचे वाले टास्क भी रखिए. इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन. देखिए सुबह उठ के दिन शुरुआत करने के लिए एक वो तो ना किक चाहिए होता है, एक वो एक्साइटमेंट चाहिए होता है, वो हमारे पास होता है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या क्या काम करने हैं, राइट. व्हेन आई वेक अप आई हैव दिस इज द ब्रेकफास्ट आई एम गोइंग टू मेक, दिस इज द लंच आई एम गोइंग टू मेक, दिस इज द डिनर आई एम गोइंग टू मेक. ऑल द women or all the men who actually cook here, if you know what you have to make, don't you think your life is easier? How many thumbs up for that? Because as a mother, I would say if I know what I have to cook for breakfast, lunch and dinner, आज मुझे पता है तो मेरा कल का दिन आधा बच जाता है क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या क्या तैयारी करनी है, राइट. सेम गोज फॉर ऑल द अदर वर्क्स दैट वी डू. इट हेल्प्स यू टू बी प्रोएक्टिव. आप एक प्रोएक्टिव पर्सन के जैसे रहते हैं जहां पर आप समय बर्बादी में विश्वास नहीं रखते, राइट. सो टाइम मैनेजमेंट डज नॉट हैव टू बी इंटिमिडेटिंग. देखिए टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आप उससे डर के और थ्रेटेंड फील करके कोई काम करे. जैसे बोलते हैं ना कि 5 बजे का अलार्म लगाए और मैम ने बोला था टाइम से उठना है तो 5 बजे उठना है. देखिए 5 बजे उठिए. अगर आपको 5 बजे उठकर ढेर सारे काम करने हैं, आप वो 6 बजे उठ के भी अगर मैनेज कर सकते हो तो आप 6 बजे उठिए या 7 बजे उठिए. इट्स अप टू यू, बट समथिंग दैट विल मेक यू कंफर्टेबल एंड देन यू डू इट, it is fine. So a little pre-planning and preparation, if you do it for your class, you will find that your students are also interested, and the way in which the class is moving towards the learning goals is also happening well. So time management tips हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं. set goals correctly, prioritize wisely, set a time limit कि इतने टाइम में मेरा काम हो जाना. मैं जैसे बोलती हूँ 30 मिनट्स, 40 मिनट्स की पीरियड में 30 मिनट्स पढ़ाना है, बाकी 10 मिनट आप आगे पीछे कुछ भी करिए पर 30 मिनट्स पढ़ाना है, ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए. टेक ब्रेक्स बिटवीन टास्क. 2 क्लास के बीच में भी अगर हल्का सा एक ब्रेक लेना, वो भी बताऊंगी कैसे लेना है, तो आप थोड़े से रिलैक्स्ड रहेंगे. ऑर्गेनाइज योरसेल्फ. ना अपनी हर चीज को बहुत ऑर्गेनाइज रखिए, फोल्डर बना के चीजें रखिए. स्टाफ रूम में भी फैलावा नहीं होना चाहिए. करेक्शन करने का भी एक टाइम स्पेसिफिक पता होना चाहिए. रिमूव नॉन एसेंशियल टास्क. जो दिन में आप नहीं कर सकते हैं काम, उनको अपने दिमाग से भी निकाल दीजिए. उतना ही करिए जो आप कर सकते हैं. और प्लान अहेड. क्या मुझे कल करना है उसकी प्लानिंग आज हो जानी चाहिए.
So always feel rushed in class. How many of you feel that, I feel मैं भाग ही रहा हूँ क्लास में, इस क्लास से उस क्लास और इस क्लास से उस क्लास, मैं थक जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ. तो how to let go of the good to make time for the great. कैसे हम अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं. सो इसके लिए कहा जाता है कि लेट आवर एडवांस वरिंग बिकम एडवांस थिंकिंग एंड प्लानिंग. देखिए, कल बैठ के हाय 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 करने से अच्छा आज तैयारी कर लो, तो आप थोड़े रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल पर्सन बन जाते हो. सो जैसे कंटेंट मैनेजमेंट रेफर्स टू एंड प्रोसेस ऑफ सोर्सिंग. क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ये आपकी कंटेंट मैनेजमेंट में थी. क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग एंड डिलीवरिंग कंटेंट भी उसका पार्ट हुआ करती थी, राइट. टाइम मैनेजमेंट इज ये सारी चीजों को हम कितने ब्रैकेट के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, राइट. सो अब मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताती हूँ, बहुत अच्छी है, सिंपल है, और मैं खुद करती हूं तो आप लोग भी कर सकते हो, राइट. स्टार्ट एंड एंड विद अ पर्पस. हमेशा अपने पास एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए. टू डू लिस्ट का मतलब है शाम को या रात को बिफोर यू गो टू बेड, यू मस्ट हैव अ डायरी इन विच यू राइट डाउन टू डू लिस्ट. और आप अगले दिन सुबह से लेकर रात तक 2 कॉलम्स बनाइए, एक पर्सनल एक प्रोफेशनल. पर्सनल में आप क्या क्या काम करेंगे. देखिए, कल सुबह उठ के मुझे दूध लेने जाना है या सब्जी लेने जाना है, वॉट एवर या आज मेरे बच्चे की पीटीएम में जाना है, ऑल पर्सनल. मुझे बैंक में काम है, पापा को मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना है. सारे काम आप जो कल करने वाले हैं आपने नोट कर दिए. वही काम नोट करिएगा जो आप कर सकते हो. स्कूल वाले में 6th A में मुझे टेस्ट लेना है, 7th B में मुझे नया टॉपिक स्टार्ट करना है, 8th A की नोटबुक्स करेक्ट करनी है, और 10th में मुझे जाकर एक एक्टिविटी करनी है. आपने सब अपने टू डू लिस्ट में लिख लिया, राइट. अब हाईलाइट कर दीजिए वो काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना हो ही नहीं सकता. कल के दिन मुझे मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाना है, तो आपने उसको हाईलाइट करके रख दिया. देखिए, 6 to 7 8 पीरियड्स पढ़ाने वाले टीचर्स भी है, माय डियर टीचर्स. देखिए, ग्रम्बल करके कोई फायदा नहीं है. आपको पता है कि मेरे वर्किंग आवर्स ये हैं, मुझे काम करने हैं. प्लानिंग अगर है तो सारी चीजें हो सकती है, आप इफेक्टिव टीचर बन सकते हैं, राइट. तो हाईलाइट कर दीजिए जो चीजें आपको लगता है कि मुझे बिना भूले करना है. स्कूल जाते ही मुझे अपने स्कूल ऑफिस में जाके मेरा पीएफ का स्लिप लेना है, मैं भूल जाती हूँ, तो मैंने उसको हाईलाइट करके रख दिया या स्टिकी नोट लगा दिया, जिससे कि मुझे पता चल गया कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन. अब मेकिंग अ लिस्ट क्या होता है, वीक में क्या क्या करना है. देखिए, एज अ टीचर एक आपको पता है ना, ईयरली प्लान, मंथली प्लान, वीकली प्लान, फिर वो लॉग बुक होता है, वीकली लॉग बुक, डेली लॉग बुक, है ना. हम लोग लिखते हैं कि ये वीक में ये सब काम होने हैं, इस मंथ में ये सारे चैप्टर्स मुझे पढ़ाने हैं. हम लोग बैठ के अपनी पूरी प्लानिंग करते हैं, राइट. सो इस प्लानिंग को, ये मास्टर लिस्ट है आपकी, जिसको आप मतलब छोटे लेवल पे लाते हो, वीकली प्लानिंग करते हो. तो अगर आप अपनी वीकली प्लानिंग बना लेते हो कि मैं इन क्लासेस को पढ़ाता हूं, इस वीक में मुझे ये कंप्लीट करना है, ये करना है, ये करना है, ये आप सैटरडे संडे जब भी आपके पास वक्त हो अपना वीकली प्लान बनाइए. वीकली प्लान को सामने रख के आपकी टू डू लिस्ट एवरी डे आप बना सकते हो. इससे क्या होगा कि आप चीजें भूलोगे भी नहीं, और इससे आपका काम अच्छे से कंप्लीट होगा, लेस स्ट्रेसफुल होगा. देखिए, काम कम नहीं होगा पर काम ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, राइट. यूज अ प्लानर में जैसे बोलते हैं फोल्डर की जैसे बात करते हैं, फोल्डर यूज करिए, या आपके पास डेली प्लानर होता है ना. एज अ प्रिंसिपल आई यूज्ड टू कीप वन प्लानर ऑन माय टेबल, डेट वाइज. आज इस असेंबली प्रोग्राम है, टुमारो देयर इज अ पीटीएम, ये परसों एक प्रिंसिपल मीट पे जाना है, या इंटर हाउस कंपटीशन है. हम लोग सारे अपने प्लानर में डेट वाइज लगा के रखते थे. सो एज अ टीचर ऑल्सो यू कैन मैनेज. आप अपने प्लानर को कंप्यूटर पे बना सकते हो. रेडीमेड इसके ना टेम्पलेट्स भी मिलते हैं, आप एक टेम्पलेट को आप प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो टू मेक योर लाइफ effective, because a well organized teacher has lot of time in hand to do other things also. दूसरी चीज मैं कहती हूँ, स्टे अवे फ्रॉम गॉसिप टाइम. देखिए, स्टाफ रूम में हम लोग बैठते हैं ना, तो काम बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दूसरों से बात नहीं कर सकते, बिल्कुल बेशक बात करिए.
आपके पास अगर 2 पीरियड फ्री है तो कम से कम आधा पीरियड आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के बात करिए, बाकी 1.5 पीरियड जो है आप अपने करेक्शन, लेसन प्लानिंग जो भी है उसमें बिताइए। इससे क्या होगा कि आपका काम नहीं सफर करेगा, एट द सेम टाइम यू स्पेंडिंग सम टाइम विथ योर फ्रेंड्स। देखो रिसेस होती है, उस टाइम आप बैठ के फ्रेंड्स के साथ बातें कर सकते हैं। गॉसिपिंग जो करता है ना वो वेस्ट ऑफ टाइम ही होता है, आप एक दूसरे की बुराइयां कर लोगे, रोना रो लोगे, सब नेगेटिव चीजें हैं। नेगेटिविटी अपने अंदर से निकाल दीजिए, पॉजिटिव थिंग्स की तरफ अपना दिमाग लगाइए। अब देखिए एज अ टीचर दिस इज अ ग्रिड विच आई टॉक अबाउट। कई बार दिस वन विच आई हैव मेड, दिस वन दैट यू आर सीइंग इज रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, बट देखिए एज अ सब्जेक्ट ऑल्सो कर सकते हैं कि देखिए आप अपने क्लास में जो भी पढ़ाते हैं उसको इम्पोर्टेंट, लेस इम्पोर्टेंट, अर्जेंट और नॉट अर्जेंट पे डिवाइड कर सकते हैं। जिस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो तो आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते हो, राइट? वो तो पढ़ाना ही पढ़ाना है और उसको टेस्ट में भी लेना है, राइट? वो आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अर्जेंट वो होगा जो आपको एग्जाम और सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट करना है। नॉट अर्जेंट वो टॉपिक्स होते हैं जो चैप्टर में वो पार्ट्स होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं या नॉट रेलिवेंट होते हैं या इजी होते हैं, वो आप नॉट अर्जेंट में और लेस इंपॉर्टेंट पे डाल सकते हो। सो होमवर्क को भी वैसे ही डिजाइन कर सकते हो कि देखिए जो रेपिटेटिव है उसको आप प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में दे सकते हो, राइट? और या फिर आपने वार्म अप एक्टिविटीज में या फिर आपके क्लोजिंग एक्टिविटीज में क्लास में ले सकते हो। अर्जेंट में आप मतलब कोर्स रिलेटेड, टेस्ट रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड वो सारी एक्टिविटीज आपने इंपॉर्टेंट और अर्जेंट पे रखी, और नॉट अर्जेंट और लेस इंपॉर्टेंट पे वो एक्टिविटीज रखी जो कि कैन टेक अस बैक सीट ऑल्सो, राइट? अब ये थोड़ी स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप सुनेंगे। थीम योर डेज, ये एक बहुत बहुत अच्छा तरीका है जिसमें कि आप लोग अपने आप को प्लान कर सकते हो कि जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हमारे पास दिन है, तो मंडे को मैं हमेशा अपने लेसन प्लान्स के ऊपर वर्क करूंगा व्हेनेवर आई हैव फ्री टाइम। सो आई विल ऑलवेज वर्क ऑन माय लेसन प्लान्स ऑन मंडेज। On Tuesdays and Wednesdays, I will do my correction work for all the classes, right? Thursday को मैं अपने टेस्ट पेपर्स की तैयारी करूंगा और करेक्शन or anything else that can work out. Friday can be a day when I can plan for the activities and catch hold of those children who need extra support from me. Maybe उनकी मैं extra class लूंगा या मैं उनको extra time दूंगा. So anything, my dear teachers, आप अपने days को theme कर सकते हैं. Theme your days as per your own way of working. करेक्शन मैं हफ्ते में 2 दिन करूंगा, 2 दिन मैं लेसन प्लानिंग करूंगा, 2 दिन मैं बाकी चीजों में जो हम एज अ टीचर हमारे पास बहुत काम होते हैं उसमें इन्वॉल्व करूंगा। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। ये दूसरा पार्ट जो है ना, ईट योर फ्रॉग, बहुत इंटरेस्टिंग है। आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस। ईट योर फ्रॉग का मतलब ये होता है कि जो चीजें आपको करने का कभी मन नहीं होता, आई डोंट लाइक टू डू दिस, उनको सबसे पहले करके खत्म कर दो। That is eating your frog. Eat your frog before it just means to do the thing you don't want to do first. When you look at this photo, you are probably making a face of disgust. Eat your frog का मतलब ये होता है, मतलब ये कि जो चीजें आपको करना पसंद नहीं है उसको पहले ही सबसे पहले करके खत्म कर दो। मुझे टेस्ट पेपर बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मंडे ही बैठ के टेस्ट पेपर बना के खत्म कर दो, मेरा काम खत्म। Then I can relax and do other jobs, right? This is what it means by eat your frog. Use your students. बच्चों को use करिए उनको importance देने के लिए। For example, क्लास में हर तरह के मॉनिटर बना दीजिए आप, क्योंकि उनको भी, बच्चे भी चाहते हैं कि they should feel important. Line monitor, door monitor, pencil monitor, water bottle monitor, discipline monitor, होमवर्क मॉनिटर, क्लास वर्क मॉनिटर, नोटबुक कलेक्शन मॉनिटर, ब्लैक बोर्ड मॉनिटर, आप दुनिया भर के मॉनिटर बना सकते हो बच्चों को इंपॉर्टेंस देने के लिए। और यू विल सी दैट दे विल फील इंपॉर्टेंट एंड दे विल स्टार्ट टेकिंग थिंग्स मोर सीरियसली इन द क्लास, राइट?
Declutter your desk and don't touch it twice. Declutter मतलब जिस जगह पे बैठते हो आपका टेबल एकदम स्पिक एंड स्पैन होना चाहिए, वो घर हो, क्लासरूम का टेबल हो या स्टाफ रूम का टेबल हो, जिससे कि आप अपने आप को बहुत ऑर्गेनाइज्ड महसूस करें। और डोंट टच इट ट्वाइस का मतलब है कि कोई भी चीज आपने अपने फोल्डर में भी रखी है तो आपको पता होनी चाहिए एग्जैक्टली मैंने कहाँ रखी है। बार बार उसको ढूंढने के लिए अपना समय ना बर्बाद करे और अपना दिमाग ना खराब करे। कोई भी चीज को दोबारा ढूंढना पड़े और तीसरी बार ढूंढना पड़े तो इसका मतलब ये कि आप बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, राइट? Recognize that you can't do it all and everything is not equally important. 24 घंटे आपके पास है, 24 घंटे मेरे पास है। 24 घंटों में वही काम आप लाइन अप करिए जो आपको लगता है आज के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं कर सकता हूं और मेरी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है। जरूरी है क्योंकि हमें ये पता है कि हम हर चीज को हमेशा नहीं कर सकते हैं, राइट? Distinguish between the urgent and the important. This I've already talked about, wherein urgent और important को पहले करिए, do first, not urgent but important, do later. Urgent but not important, that you can delegate to others, and not urgent and not important can be eliminated. So you can ask yourself, is this job important? Do I have to do it right now? Can I do it after, say, 1 hour, 1 day, 1 week, depending upon priority, right? अपनी priority के हिसाब से अपने काम को importance दीजिए। वो काम जो आपको पहले करना है वो पहले करिए और जो काम बाद में होना वो करिए। मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मत करिए, जो जरूरत के काम नहीं है वो छोड़ सकते हैं आप, राइट? और सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप इन कर सकते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ ना, करेक्शन करते हैं आप लोग ने, बहुत सारे टीचर्स जब पेपर करेक्शंस करते हैं, आपने देखा आप लोग करते हैं, फर्स्ट पेज सारे बंडल के फर्स्ट पेज को हम पहले कर देते हैं, या एक ही तरह के क्वेश्चंस को हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। एक पूरे सेट का सारा करने में आपको थोड़ा बोरियत लगता है, पर हाथ जल्दी जब चलते हैं, हमने फर्स्ट पेज एक साथ कर दिया, सेकेंड पेज साथ में कर दिया, थर्ड पेज, तो हमारा काम जल्दी हो जाता है, राइट? तो ये स्ट्रेसेस हम अपने कम कर सकते हैं। जैसे बताया ना, करेक्शन डे रख लो, तो आज मैंने 6-7 का करेक्शन कंप्लीट करना है, सोच लिया तो मेरा काम हो जाएगा। आज मैं लेसन प्लान बनाने की सोच के बैठती हूँ तो मैं 3 लेसन प्लान कर सकती हूँ कि टुडे आई एम डेडिकेटिंग माय डे फॉर लेसन प्लानिंग, राइट? आप देखिए इस इधर यहाँ पे साइड में जो थोड़ा से कैप्शंस बने हुए देखिए, स्ट्रेस्ड इज डेजर्ट्स स्पेल्ड बैकवर्ड्स। स्ट्रेस्ड एक बहुत परेशान करने वाला शब्द है, पर हम उसको उल्टा पढ़ते हैं तो वो डेजर्ट्स है। डेजर्ट्स का मतलब क्या होता है? स्वीट डिश। तो हम अपने स्ट्रेसेस को स्वीट डिशेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय आर स्ट्रैटेजीज दैट वी चेंज। दूसरी वाले पिक्चर में देखिए, पफ, हाउ कैन आई बी मोर इफेक्टिव एट टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम बोलता है, प्लान टू मेक टाइम योर पार्टनर नॉट एन ओपोनेंट। मेरे पास समय नहीं है बोलने की जगह, मेरे पास जितना समय उसमें मैं ये सब काम करूंगा, ये बोलिए अपने आप को। अपनी पर्सनल लाइफ को भी चेक पे रखिए। देखिए, आई माइट टेक अ 5 minutes एक्स्ट्रा बिकॉज अ लिटिल मोर आई हैव टू कंप्लीट। मैं टाइम मैनेज करके आई थी, पर मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा इसमें चले गई कि मे बी आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर बेटर। सो कीप योर पर्सनल लाइफ इन चेक टू। जैसे पर्सनल लाइफ की बात करते हैं ना, देखिए टीचर्स आर very hard working people. I understand that. And being a teacher myself, once upon a time, I know how much effort each one of us have to put to make our classroom interesting, right? So apne time ko respect kariye, recognize that you are having an impact even when it doesn't feel like it. Aap class mein jaate na, you're impacting on the students who are learning from you. So never think that nobody cares for me, nobody listens to me, nothing like that. The children listen to you and you're making a difference in their life. So if you want to make a positive difference in the life of children, you have to make sure that you're doing it in the right way, right? Shut off the electronics. Now, this is a strategy that I keep requesting to people. I do not know how many would follow this. 1 hour before you go to bed, you must keep your mobile phones far away on a charging point, which is not close to you. Reason, you have to calm down your mind. See, 1 hour before you sleep, if you are
not using the mobile. The fast moving images which are in front of your eyes makes your mind also think a lot. So instead of using your phone at say 9 to 10 or 10 to 11, whatever time you sleep, 1 घंटे पहले, तो उस टाइम पे आप अपना टू डू लिस्ट के बारे में सोचिए, या अपना इंट्रोस्पेक्शन करिए कि मेरा आज का दिन कैसे निकला, what was right, what was wrong, what is it that I should repeat tomorrow, what is it that I should not repeat tomorrow. Or spend quality time with your children or your spouse, your husband, your wife, whomever. अच्छी बातें करिए, दिन में हुई अच्छी बातों को याद करिए. This will make your life better, right? Know when to say no. अब देखिए, हर चीज में yes बोलना जरूरी नहीं है. आप थक के आए और आपने बच्चे को प्रॉमिस किया था आपने कि I will take you to the park today, and you're very tired. You can always tell your child going back that, okay, I am very tired today. I know I wanted to take you to the park today, but can we not do it on Sunday? Sunday, I promise you, I'll take you. Instead, we will do this today. अगर आप बोलते हैं तो बात बन जाती है. ये आप अपने ऊपर लेते हो ना कि मैं ना कैसे बोलूं, उसने मुझसे कहा है, करना ही पड़ेगा. प्रायोरिटी वाली बातें, अगेन, अगर आप चाहते हैं अपने प्रायोरिटी के हिसाब से बढ़ने को, तो आप वो उसको आगे बढ़ा सकते हो. अपनी हेल्थ के साथ कभी खेल ना करिए. 3 चीजें मैं हमेशा बोलती हूँ: eat well, sleep well and exercise well. These 3 things you must do for yourself. यहाँ पर आप अपने लिए सेल्फिश हो जाइए. And don't forget you have friends outside of school. स्कूल के बाहर भी दोस्त हैं, ये मत भूलिए. अपने सोसाइटी, रिलेशंस, रिलेटिव्स, फैमिली, इन सबको भी अपना समय दीजिए. और लेट गो ऑफ थिंग्स विच आर ओवर. किसी बात को लेके अपने आप को प्रेशराइज करना जरूरी नहीं है. जो चीजें आपकी जिंदगी में होके बीत चुकी है, उसके बारे में रो के, चिल्ला के, गा के कोई फायदा नहीं है, राइट? So setting priorities is first thing, चाहे वो घर की हो या स्कूल की हो. Saying no to things that you feel cannot be done is perfectly fine. और अपने लिए समय बनाइए. मैं बोलती हूँ मी टाइम. मी टाइम का मतलब है, चाहे आपको हॉबीज जो भी है, दिन में एक 30 मिनट्स अपने आप के लिए निकालिए, जहां आप either you listen to music, you go for a walk, you do gardening, you sing, dance, write, read, whatever you want. कुछ भी करिए, 30 मिनट सिर्फ अपने आप के लिए निकालिए. इससे क्या होगा, अपने आप अपने माइंड को काम करने की, यू बिकम काम विथ योर माइंड, कामनेस सेट्स इन. जब स्कूल में है, ध्यान रखिए कि टाइम मैनेजमेंट जो मैंने बताया ना, क्लासरूम 30 मिनट्स पढ़ाना है तो 30 मिनट्स पढ़ाना है. अगर मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आई कैन डू सम एक्टिविटी विद देम. और कम्युनिकेट योर गोल्स टू योर स्टूडेंट्स. बच्चों को पहले ही बता के रखिए कि हम क्या करेंगे. जैसे मैंने बताया था बोर्ड पे चैप्टर लिख दीजिए और सब टॉपिक्स लिख दीजिए. एंटर योर क्लासरूम वेल प्रिपेयर्ड. बिना प्रिपरेशन के क्लास में मत जाइए. और यही बात है, 30-45 मिनट्स का पीरियड है तो उसमें आपने कितनी प्रिपरेशन करिए वो आपको पता होनी चाहिए. टाइम यूटिलाइजेशन पूरी होनी चाहिए. होल्ड द क्वेश्चन. बच्चे अगर बार बार आपको इरिटेट करते हैं क्लास में कि आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, तो यू कैन ऑलवेज टेल देम I will answer all the questions at the end of the class. Let us finish this topic beforehand. तो बच्चे उस बात से भी मान जाते हैं, राइट? और कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी डायरेक्शंस को बहुत क्लियरली, इंस्ट्रक्शंस को बहुत क्लियरली बच्चों को बताइए, जिससे कि वो लोग मिस्टेक्स ना करें, राइट? ये मैं हमेशा बोलती हूँ टीचर्स को कि जब आप स्कूल जाते हैं तो अपने सारी परेशानियां घर पे छोड़ के जाइए, घर की. और स्कूल की परेशानियां स्कूल में छोड़ के घर पहुंचिए. काम लेके आइए पर परेशानियां छोड़ के आइए. और अगर आप हर रोज घर पे आके अपने फैमिली मेंबर्स से, हस्बैंड से या वाइफ से स्कूल के रोना धोना करेंगे ना, तो लोग आपको अवॉइड करने लगेंगे. उनको ये लगेगा ये तो रोज ही रोती रहती है, ये तो रोज ही रोता रहता है, let me get out from here. This is what will happen. Instead, what you should do is, पूरे दिन में क्या पॉजिटिव चीज हुई उसको हाईलाइट करिए. डाइनिंग टेबल पे डिनर टाइम पे सब लोग साथ पे बैठिए और ये एक रूल बनाइए कि सब लोग एक एक वो चीज शेयर करेंगे जो आज बहुत ही अच्छी हुई. जैसे कोई बच्चा बोलता है कि आज मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ आलू पराठा शेयर किया, उसकी मम्मा ने कितना अच्छा बनाया था. So you have to appreciate, see, you have a very good friend.
and you say, okay, today I taught this chapter to the class and they really enjoyed it. So when you talk about something positive, the atmosphere in the house becomes positive, right? सिंपल है, क्विक रिकैप है. मेक योर डेली प्लान्स. जैसे मैंने बताया, ईयरली, मंथली, वीकली प्लान के अलावा डेली प्लान टू डू लिस्ट के हिसाब से बनाइए. सिमिलर कामों को एक साथ लिस्ट करिए और कितना टाइम किस काम में लगता है वो आप पहले प्रेडिक्ट करके उस हिसाब से काम करिए, राइट? अलार्म सेटिंग की जरूरत हो कहीं पे, अगर आप भूल जाते हैं, मैं पानी पीना भूल जाती हूँ तो फोन पे बीप लगा के रखा है कि आफ्टर एवरी 1 hour आई हैव टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट? समथिंग लाइक दैट कैन बी डन. और जहां फोन की जरूरत नहीं है, फोन बंद रखिए, स्कूल में स्विच ऑफ करके रख दीजिए, क्लासरूम में कभी भी लेके ना जाइए. जरूरत है फ्री टाइम में अपना फोन चेक करके कुछ इंपॉर्टेंट है तो यू कैन डू इट, अदरवाइज नो. समय को ध्यान में रखते हुए काम करिए हमेशा, एंड मेक श्योर दैट जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो उस टू डू लिस्ट में टिक करते जाइए, राइट? सो वी रिमेंबर दैट टाइम मैनेजमेंट इज टू मेक अ टू डू लिस्ट, focus on the tasks that we do, remain proactive, prioritize what is important and what is not, organized way में काम करना और delegate करना भी आना. हर चीज मैं करूंगा, मैं ही करूंगा नहीं होना चाहिए. दूसरों के साथ भी अपने काम को शेयर करिए. बच्चों को भी सिखाइए कि वर्किंग स्मार्टर इज इंपॉर्टेंट देन वर्किंग हार्डर, राइट? तो जैसे काम देते हैं तो उनको अगर नहीं करते, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है बताइए, अलार्म क्लॉक का कैसे यूज कर सकते हैं, चेक लिस्ट क्यों बनाना चाहिए, टू डू लिस्ट क्यों बनाना चाहिए, अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान क्यों रखना चाहिए, मोबाइल कितनी देर यूज करना चाहिए, खेलना क्यों इंपॉर्टेंट, ये सारे बच्चों को आपको बताना जरूरी है. पेरेंट्स को भी आपको बताना जरूरी है कि टाइमली बच्चों को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, उनके प्रोजेक्ट के बारे में ध्यान रखना, उनको जो भी रिक्वायरमेंट है, बुक्स है, स्टेशनरी है, टाइमली प्रोवाइड करके देना, राइट? इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा भी फैमिली टाइम इज इंपॉर्टेंट. Taking the children for family activities is important. Sports is important. Exercise is important. Eating is important, right? Just coming to the end of the session with a few beautiful quotations that I would want to share with you. You will never find time for anything. If you want time, you must make it, right? Time management requires self-discipline, self-mastery, and self-control more than anything else. And lack of direction and not lack of time is the problem. We all have 24 hours, our days, right? And time isn't the main thing. It is the only thing that is important. Either run the day or the day will run you. And it is not enough to be busy. The question is, what are we busy with? All right. So with this, I come to the end of my session. Content and time management. I am sure I have given you enough reasons to think about what is to be done and what is not to be done. आपको पता होना चाहिए आपके टाइम को आपको कैसे मैनेज करना है, पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए. आप क्या करोगे अपनी क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, right? So these things, if you have heard well and if you think you will be able to manage well, make sure that you become a good human being and you are becoming an effective teacher, right? Thank you so much for being part of my session. I'm sorry I exceeded time by 8 minutes. That's because I had to, complete what I had started off. Thank you. God bless each one of you. Have a wonderful day ahead and make sure you are the best teachers and children love you. Thank you. God bless you. Namaste. Thank you, ma'am, for the wonderful session. I hope everybody has enjoyed and it was quite a learning experience for all of us. Thank you.